I'm Hi Preeti, how are you? I'm good. Can we start? Yes, 100%. So, first of all, welcome to our channel, Divya, and very big congratulations for so many things. Firstly, for your music album song. Secondly, for your new business, and thirdly, for your web series, Carter. So, first of all, I want to know for about your music album song. Which So it's releasing tomorrow. yeah, It's releasing tomorrow with one of the newest actor that I worked with, that is Shakti Arora, and he is a gem of a person, very talented and very cute. So I was quite excited to do this video with him, and the song itself is very beautiful. Even if you ignore the video, the song is sung by Nitin Gupta and Rupali Jagga, and they have sung the song beautifully, and I can't wait for my fans to see the work and the magic that the four of us have put in together. तो कितनी एक्साइटमेंट है या फिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे म्यूजिक एल्बम सॉन्ग को लेकर? सॉन्ग्स मेरे लिए हमेशा एक स्टार्टर्स की तरह रहे हैं मेन्यू में. जितने ज्यादा आते रहे उतने मजे आते रहे. एंड इश्क निभावा इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एंड वन ऑफ दो स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स जहाँ पे तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग्स काफी ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू नो from the fans how do they like and how much do they relate it. And obviously the chemistry with Shakti is amazing and outstanding, and the director and everybody, the entire team, the team last page has directed the video, and it's one of my it's my second project in Punjabi music industry. Okay. So tell us about your overall experience with Shakti Arora and related to songs. Okay, so the first song has already been released, and by Nawab, and it was also a very amazing dancing number. Again, a Punjabi number, and this one I have shot these two songs together in one trip. And working with Shakti and Team Last Page was an amazing experience because that song is really the crust of your feelings, and I think nobody else could have pulled it off better than Shakti Arora himself. And उनका भी look काफी अलग है, and like you guys have never seen him in that look. The trailer is already out, so you guys must have seen the trailer. And working with him was purely professional, and he's a gem of a person and gem of an actor, I feel. Okay, what is the USP point of the song? The USP point of the song is, I think, the storyline. The storyline is quite beautiful. The song, the way it starts and the way it ends, it's a beautiful experience. I guess people are going to enjoy the song and the video combined together. It's a beautiful love story. Okay, so tell us about your new business, Boharani, and clothing brand. So Bohrani, yeah, yes. So is it Bohrani correct? is, sorry? Is it correct, Boharani? Bohorani, yes. Okay. So Bohorani is I was always a fan of Bohemian culture, and Bohemian clothing is something very comfortable and very chic. So I wanted to add boho into my collection. So it's like the brand name is Boho and Rani. Rani is obviously whoever wears it is a Rani. I'm 100% sure, and it has a lot of weightage for me because the company is registered under my parents' names. And after I lost my dad, I thought of taking his name ahead into a business, and I hope his blessings are with me for this business. Okay, so price level and क्या आप ये कपड़े पहनने वाली है ये जानना चाहूंगी. ऑफ कोर्स ये कपड़े मेरे टेस्ट के हैं. ये कपड़े आई गेस हर किसी के टेस्ट के हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लोथिंग इज वी हैव नो साइजेस, वी हैव नो बाउंडेजेस ऑफ हाउ टॉल यू आर, ऑफ हाउ शॉर्ट यू आर, और व्हाट इज योर बॉडी स्ट्रक्चर लाइक. एंड वो सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए द 70% ऑफ द कलेक्शन हैज फ्री साइज. And I would be happily sharing the same outfit with my mother again. Okay. So it's a great pleasure, and it's going to bring a lot of stories because the brand is called Bohorani Stitching Stories. तो आगे जाके ऐसा भी होगा कि जब ब्रांड लोग वो एक पर्टिकुलर कपड़ा पहन पहन के बोर हो चुके हैं, so they can send it back to us and we will donate those clothes to the less fortunate people. And it's going to be a community chain. So Bohorani can be affordable by the
common people, by the middle class people, and also to be delivered to the less fortunate people, so that they can also enjoy a branded clothing on them. ओके, सो कैसे वो ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे वो ले सकते हैं ये ड्रेस? फिलहाल ये ब्रांड लॉन्च हो चुका है. द फर्स्ट लुक ऑफ इट इज आउट, द फर्स्ट कलेक्शन लुक ऑफ इट इज आउट, एंड सून इन द मंथ ऑफ अगस्त these guys will be launching it, and ये सब अगस्त के महीने में होने वाला है, and we can have these kind of garments for weddings, for your vacations, and I know how much people are waiting for vacations and weddings after COVID. So yes, here is the solution. ओके, सो हु इज ब्रांड एम्बेसडर? You? Oh my God, the brand ambassador right now is every woman who's wearing it. I don't Okay. want to really keep it as somebody who's representing the brand, because Bohorani is an ideal brand for every woman, and I don't want to limit it to one person. I want this to be a community where we do good. So even if you are wearing it, प्रीति, आपके तो नाम में भी रानी है, तो प्रीति आप भी वो रानी पहन सकोगी, and you will also be called as one of my brand ambassadors, because I genuinely want people to have that connection with the brand. ओके, सो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी वेब सीरीज जो आ रही है 20th अगस्त को रिलीज होगी, कार्टेल, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे उससे रिलेटेड? कार्टेल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं कह सकती हूँ उससे, और मेरी 12 साल की स्ट्रगलिंग लाइफ में पहला ऐसा वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है, और लिटरली मैंने चांद तारे सब इकट्ठा करके इसमें डाल दिए हैं. मेरी जितनी टैलेंट है मैंने सब इस पे वार दी है, एंड मैं जेन्युइनली चाहती हूँ, बिकॉज ये सीरीज जब मेरे पास आई थी तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश थी, बिकॉज इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसमें 137 एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और उनके साथ एक पोस्टर पे आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है. सो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ कार्टेल. ओके, सो कार्टेल का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो तो अमेजिंग है. आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके स्टोरी के बारे में? क्या कुछ ब्रीफ देना चाहेंगे ऑडियंस को? स्टोरी एक बहुत ही अच्छी गैंगस्टर स्टोरी है. कार्टेल विद द नेम सजेस्ट, कार्टेल होगा, एंड it's all about the Mumbai mafia and the drug lords and all those gangsters. You know, हम because मैं मुंबई से पली बड़ी हूँ, तो मैंने बचपन से ही काफी गैंगस्टर माफिया स्टोरीज सुनी है, खबरों में देखा है, तो I was always intrigued to know what these guys are, and ये लोग कैसे सोचते हैं, क्या काम करते हैं, इनकी साइकी क्या होगी ये सब काम करते वक्त. So I was quite intrigued, and I'm a very big fan of crime and thriller horror movies, and that is the reason why Ragini was a horror project which I wanted to take up, and Cartel is that crime and thriller project which I am very excited to be a part, and I can at least say that my character has a lot of contribution in the thrill part of it. ओके, सो सबसे पहले पूछना चाहूंगी कितनी चैलेंजिंग रही इसमें आपको पार्ट, मतलब ये आप जिस तरह से कैरेक्टर निभा रही हैं वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मेरे लिए चैलेंज तो यही था, 137 एक्टर्स हैं उसमें, तो पर मेरा जो रोल था वो 6 अलग अलग वेब सीरीज के बराबर था. सो आई हैव 6 कैरेक्टर्स इन द वेब शो, एंड वो 6 के 6 एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं, एंड उसको स्टडी करने में, वो कैरेक्टर को स्टडी करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, एंड एक एक महीना मैंने बिताया है एक एक ऐसे कैरेक्टर पे, एक एक ऐसे रियल लाइफ रिलेटेबल कैरेक्टर से जो मुझे बॉडी लैंग्वेज सिखा रहा था, जो मुझे एक बेसिक बॉडी लाइनिंग सिखा रहा था. तो मैंने काफी कुछ सीखा है. इट हैज बीन अ लर्निंग प्रोसेस, एंड लोगों के लिए वो शायद जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं वो उनके लिए एक वेब सीरीज है, मेरे लिए ये 6 के बराबर है. वाओ, सो कितना एंजॉय कर पाए इन सब कैरेक्टर्स को आप? काफी एंजॉय किया. हर कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग है और काफी चैलेंजिंग है, और मुझे जेन्युइनली बहुत मजा आया था, बिकॉज जब हर कैरेक्टर का प्रोस्थेटिक मेकअप मेरे मुंह पे लगता था तब पूरा सेट सिर्फ और सिर्फ यही देखता था कि आज मेकअप कैसा लग रहा है और आज क्या है. एंड इट वाज अ वेरी फन एनवायरनमेंट, बिकॉज इस चेहरे के साथ मैं कभी सेट पे नहीं गई हूँ, या मैं बिना मेकअप के गई हूँ ऑन स्क्रीन, या मैंने प्रोस्थेटिक किया है. दिस फेस इज रियली नॉट देयर, एंड इसीलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज काफी ज्यादा चैलेंजिंग था. या तो मतलब तुम्हारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको तुम कवर अप करके आगे जा रहे हो, तो आई वांटेड टू गिव जस्टिस टू दोस कैरेक्टर्स कि मैं दिव्या अग्रवाल कहीं ना लगूं. ओके,
सो जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे इसमें एक्टर्स हैं, ओवरऑल कैसा सेट का इन्वायरमेंट रहता था, क्या कुछ सीखने को मिला उन सब एक्टर्स से, या फिर क्या आप अपने कैरेक्टर से क्या कुछ सीख पाई? ये तो आपके लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा बिग प्रोजेक्ट रहा है, तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला? सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। जैसे कि मैंने बताया कि 6 कैरेक्टर्स हैं, तो 6 कैरेक्टर्स के बारे में सीखने मिला। बचपन से ही मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती थी कि मुझे बड़े होके क्या बनना है। मुझे हर प्रोफ़ेशन बहुत मज़ा आता था। मैंने जर्नलिज़्म किया है ये सोच के कि हाँ, चलो टीवी एंकर तो ज़रूर बन सकती हूँ, जर्नलिस्ट तो ज़रूर बन सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ़ में एंड मैं हमेशा से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी जहाँ मेरे सारे स्किल्स सामने आए। तो ये सारे कैरेक्टर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इन रियल लाइफ एंड विद द एक्टर्स यस मेरे जो सीन्स हैं वो काफ़ी कम एक्टर्स के साथ है बिकॉज़ इट्स क्वाइट अ मिस्टीरियस रोल। बट जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया दैट इज़ ऋत्विक धनजानी एंड तनुज बिरवानी। They have loved my performance and it was a complete give and take on set. 4 बातें अगर मैं उनसे सीख रही थी तो वो भी कुछ सीख रहे थे, वो मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात थी बिकॉज़ I am not that experienced or I don't have a huge profile in acting when it comes to that. रागिनी and this is my second project and I hope इस second project में ही मैं अपने आप को उतना प्रूव कर दूं कि मुझे 50 वेब सीरीज बोलने की जरूरत नहीं। ओके, सो इन फ्यूचर क्या कुछ ऑडियंस के लिए आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाने वाली हैं, या फिर क्या कुछ ऑडियंस के लिए होने वाला है सरप्राइज? ऑडियंस के लिए बहुत कुछ होने वाला है। मुझे लोग मल्टीटास्कर के नाम से जानते हैं तो ऑब्वियसली it can never be one thing for all my fans. They have an entertainment package literally five in one. जैसे मैं कार्टल में हूँ वैसे मैं रियल लाइफ में भी हूँ। मेरी काफी पर्सनालिटीज है, being a business woman, being an actor, being a content writer, being a producer. मेरे काफी चेहरे हैं तो वो सारे फैंस को हर चेहरा बड़े अच्छे तरीके से मिलने वाला है इस साल एंड आई कांट वेट फॉर इट। ओके, यू आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग, हु मतलब आपके इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन एज मैंने बताया सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो मेरे डैड थे मेरे लिए क्योंकि उन्होंने मेरे पे ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेंके थे चाइल्डहुड में जो मैंने काफी ब्यूटिफुली टैकल किए हैं एंड हमेशा मैंने यही सोचा है कि अपने आप को मैं काबिल कैसे बनाऊं एंड दैट हैज ओनली बिन माई इंस्पिरेशन। एवरीडे लाइफ इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं आपसे भी बहुत इंस्पिरेशन लूंगी। थैंक यू। रानी मैं आपसे भी इंफॉर्मेशन काफी इंस्पिरेशन लेने वाली हूँ। मैं हर एक वो बंदा जो मुझे मिलता है मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है एंड आई डोंट वांट टू बी इंस्पायर्ड बाय समबडी जिससे मैं कभी नहीं मिली हूँ लाइक अ मूवी स्टार जिसको मैं दूर से देख रही हूँ और मैं इंस्पायर हो रही हूँ। नहीं, मुझे ऐसे चाहिए जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके जो डेली स्ट्रगल्स है वो कैसे कर लेते हैं, तो मुझे उनसे काफी सीखने मिलता है। ओके, एंड लास्टली जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके फैन है, वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपके जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमेशा आपके एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं उनको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ कलाकार और कलाकार का काम है एंटरटेन करना एंड आई विल नेवर फेल देम एंड आई प्रॉमिस के आई विल कीप कमिंग अप विद सच थिंग्स एंड आई विल नेवर स्टॉप and thank you so much for all the love and support you guys have been giving since past 4-5 years and आगे भी मुझे support की बहुत जरूरत होने वाली है, so please guys, please be with me. Thank you so much for everything. All the best. Thank you so much. Nice Thank you. talking to you, Divya.